السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المبتغلين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة والأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. بابا جی مزہ نہیں آتا میں نے کہا آپ کے قدموں میں آتا کیا بات فاصلہ جاتا ہے آپ کے پاؤں میں بیٹھ کے پڑھتے دعائیں پروردگار عالم بانیان کے جیسا فیضان بری بارگاہ مقدس میں کہ وہ نمبر سمائے. ہمارے جناب رائے صاحب پروردگار ان کی عزت رزق میں اضافہ فرمائے. جتنے احباب گھر بار چھوڑ کے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں تشریف لائے ہیں آپ کے ایک ایک سانس ایک ایک قدم بی بی پاک کی نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. یہ جو جتنے آپ تشریف فرما ہیں میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے قدموں میں آیا ہوں کہ آپ کا جو وجود ہے یہ بی بی پاک کی دعا ہے. گزارش ہے کہ آپ کا جسم آپ کا وجود حسین کی ماں کی دعا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس فکرے پہ آمین کہیے میرا اللہ ہمارے ملک پاکستان میں امن و امان کی سلامتی نصیب فرمائے. ایسے شر پسند عناصر جو ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ملک کا امن خراب ہو رہا ہے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور اگر وہ ہدایت کی لکیر کراس کر چکے ہیں تو خدا انہیں نصف و نابود فرمائے. اس خصوصی طور پہ اس دعا کی قبولیت کے لیے اور زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے اور بالخصوص پاک حسین کی پاک اماں کی رضا کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ 14 پیر ہم پہ راضی ہو جائیں. نعرہ تکبیر نہیں پائی جی حلالی زیادہ ہے آواز تھوڑی ہے. نعرہ رسالت مل کے اونچا نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت یزید پلید ولید ترید خبیث لعین ملعون پہ لعنت. ایک چاہتا ہے ایک لعنت اور کر لیں اس کے بغیر پھر میرا گزارا نہیں ہے. میرے پاک مرشد علی کوئی کیسے بھی چلتا ہے اس حرامی پہ لعنت پر محمد وآل محمد صلوات. اجازت نہ جو بندہ وہاں پڑھتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے جو یہاں پڑھتا ہے وہ آپ کا نوکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں منبر چھوڑ کے آپ کے پاس کیوں آیا چونکہ میں ذاکر نہیں ہوں میں آپ کا نوکر ہوں. ذاکر ہونا بہت اونچی بات ہے. میں سیدوں کا ماتمیوں کا نوکر بن کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. ایک اجازت مجھے یہ دیجیے کہ کیا میں تبلیغ سے آغاز کر دوں مجلس پاک کا یعنی اگر پہلا منٹ تھوڑا سا کڑوا بھی ہو جائے اس کے بعد میٹھا سیدھا ہو جائے گا تو اپنے پتر کو برداشت کر لیں گے. ایک منٹ مجھے ایسے دیں کہ آپ کے پاکیزہ سانسوں کی آواز منبر تک آئے. کیا آپ کا پتر آپ کا نوکر نماز عشق شروع کرے؟ محترم صاحب اللہ نے علی ولی اللہ والے مذہب میں ماتم حسین والے مذہب میں کالے کپڑوں والے مذہب میں حسینیت والے مذہب میں اللہ نے باپ کو ایسی عزت عظمت ویلیو اور سٹیٹس عطا کیا ہے کہ ابے کا حکم شریعت میں اثر رکھتا ہے.
आप सही हैं, आप तो समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी कुछ ऐसे भाई हैं जो मेरी तरह थोड़े पड़े हुए हैं, बिस्मिल्लाह करा, वो मेरे साथ नहीं बोले, ये वाले भाई बोले कुछ नहीं बोले। कुछ ऐसे भाई की मजलिस में होते हैं जो ज़रा मेरी तरह थोड़े दिमाग वाले, मैं उनको ज़रा वजाहत करता हूँ कि मैंने क्या कहा या नहीं। मसला पुत्र बाप का हुक्म शरीफ में से कहता है भाई चाचा जी मेहरबानी, मतलब क्या है बेटा, ज़रा मैं मतलब समझा रहा हूँ। मतलब बेटा ये है 5 वक्त नमाज पढ़ना वाजिब है। 2 बंदे अजी कहता है बाकी चुप हो, उठ के सारे घर भी टोड़ते तो नहीं वाजिब है। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मोहतरम शामिल, नमाज वाजिब है, जमात वाजिब नहीं है। तवज्जो सुनने में आपसे मैंने पहले कहा, शादी जानते हैं, ऐसा जो साहब जानते हैं कि मैं आपका वो पुत्र हूँ जो 5 मिनट में मजमा उठा के छत से लगा देता है। ऐसे मेरे अंदर कसीदे हैं सदात की दुआओं के सदके में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट जरा तबलीग हो जाए, इसके बाद सीधा जैसा आप चाहें। मसला कैसे? जमात मुस्तहब है, आप घर में पढ़े नमाज, मस्जिद में जाए, जमात के साथ पढ़े तो सवाब ज़्यादा है, लेकिन जमात वाजिब नहीं है। कोई ऊँची आपको जमात वाजिब। तेरे छठे बादशाह फरमाते हैं, अगर बाप बेटे से कहे कि जमात से पढ़, अब जाफर सादिक का मुस्तहब वाजिब हो जाता है। इतना अच्छा बोल रहा, मैं तो डरा हुआ था। अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। वो भाई एटियां कौड़ियां कर बेटा सोना बोलते हो, और मैं तो डरा हुआ था। मैंने कहा शायद कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ। तो भाई इतनी कड़वी बात का आप इतना अच्छा बोलते, लो फिर दुआ भी लो, पाक बीबी आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। कैसा कमाल का मजमा, लोग नारे मारते हैं कसीदों पे, आप तबलीग पे इतने कड़वे क्यों बोल रहे हैं? अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए। अच्छा, तो मैंने क्या कहा भाई, अब्बे के कहने से शरीयत का हुक्म असर रखता। कैसे? यानी बाबा जी मुस्तहब जमात, बाप ने कहा वाजिब। एक दूसरी मिसाल, आप अपने घर से जाते हैं 22-23 किलोमीटर का सफर करके, तो वापस भी तो आएंगे ना, तो ये बन जाएगा 45-46 किलोमीटर। मासूम फरमाते हैं, हर वो नमाज जिसकी 4 रखते हैं, अगर तू हमारा मानने वाला है और 45-46 किलोमीटर सदके जामा सफ़र करता है, तो अल्लाह तुझे तोहफा 14 के सदके ये देता है कि वो नमाज जिसकी 4 रखते हैं, अब तो कितनी पड़ेगा? कैसा कमाल मजमा यार, आप कितनी पड़ेगा? हम सारे दुआ कहना। अब रिक्वेस्ट करूंगा इस फिक्रे पे जरूर हलाली बोलने, जरूर बोलिएगा। मासूम फरमाते हैं, लेकिन अगर तू अब्बे की मुखालिफत करके सफर करेगा, हम 14 वो तोहफा छीन लेंगे। मैं सदके जावा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह भाई, हाय सारा पंडाल मेरे साथ बोल पड़ा है, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं अगला कड़वा जुमला कहने से पहले, सैयदादा आपकी दुआ से बाबा जी, ऐसा जो साहब आपकी इजाजत है, मैं अगला कड़वा जुमला कहने से पहले एक ऐसा फिक्रा कहूं कि वो भाई जो कहता है ना, मैं तो कभी मैंने से नहीं बोलिया, अगर वो भी ना बोले तो मैं सईदों का नौकर क्यों हूँ। बड़ी शान सुनते हैं ना हर जुम्मे के जुम्मे, माँ की शान है, माँ की शान है, माँ की शान है। ये असल में किसी और तक इशारा है। माँ की बड़ी शान, माँ की बड़ी शान है, और माँ वो हस्ती है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। नो डाउट, नो डिबेट, खुदा की कसम बात सच है। अम्मा के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन मौलवी साहब अब्बा मामूली शय नहीं। अम्मा के कदमों के नीचे जन्नत आती तब है जब अब्बा कहे कि मुझे कबूल है। हाय हाय, सदके जामा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। कोई ऐसा शिया है जिसका हाथ नहीं उठा सकता? मैं नौकर हो गया, मैं आपका नौकर हो गया, सारे रजब का नौकर हो गया जी मैं। क्या कमाल लोग हैं यार आप। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पिंड में नहीं, मैं कराची में बैठा हूँ। ऐसा लगता है जैसे लाहौर में बैठा हूँ। मौला आपको सलामत रखेगा। कमाल मजमा है भाईजान, ये रजब नहीं है तो खुदा की कसम जन्नत है। बिस्मिल्लाह कर, मौला आपको सलामत रखे। तबलीग भी आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ। अच्छा, 2 बातें, अगर तू बाप की मुखालिफत में सफर करेगा तो हम वो तोहफा, यानी तेरा सफर हराम है, अब 2 की बजाय तुझे पूरी 4, और कबूल कर रही है नहीं, ये बात तो मसला है, लेकिन तोहफा तेरे लिए, चूंकि 14 का तोहफा अब्बे के फरमा बरदार के लिए है, नाफरमान के लिए। तीसरा फिक्रा, अब मैंने कहना ही नहीं कि सारे बोलो, ऊंचा बोलो, हाथ उठाओ, मैंने नहीं कहना। आप पूछिए पुत्र क्यों? इसलिए कि ये फिक्रा ऐसा है कि जो आपके अंदर खून है ना, ये जो आपके अंदर खून का पंप करता है दिल, इसके अंदर है अली, और जिसके अंदर अली हो वो दिल में काबा होता है। ये आप
आपको मजबूर करेगा और आपकी पाकीज़ा आवाज़ मिंबर पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। बेशक अपने अपने होंठ दबा भी लें तो आपकी आवाज़ मिंबर पे आ जाएगी। सदका अली की जूती का आखा जुमला। मासूम फरमाते हैं 70,000 हज से अफजल है एक बार अकबर के बाबे की ज़बानी करना। बिस्मिल्लाह कर। बहुत शुक्रिया भाई। खुदा की कसम इन बातों में लोग दाद कम देते हैं। यार आप हैरान हैं, आपने मुझे हैरान करके रख दिया कि तबलीग में इतना अच्छा बोल रहे हैं। मौला आपको सलामत रखे। 70 और शाह जी बाबा जी आप सैयद हैं बाबा जी, मैं माफी चाहता हूँ, हदीस पढ़ते हुए एक लफ्ज मिस हो गया। 70,000 सिर्फ हज नहीं, 70,000 मकबूल हज। हज्जे मकसद के जामा चाचा जी मेहरबानी, अल्लाह आपका सया सलामत रखे। हज्जे मकबूला से अफजल है एक बार अकबर के बाबे की जियारत करना। हुन सारा बोलना है। मासूम फरमाते हैं लेकिन अगर तू अब्बे से लड़ के बाप की मुखालिफत में करबला जाएगा, सकीना का बाबा तुझे मत्थे लगाना भी पसंद नहीं करेगा। चाचा जी ऐसे तबलीग होनी चाहिए ना। अब्बे की इज्जत, अब्बे की इज्जत पढ़नी चाहिए। अब मैं बिल्कुल करीब आ गया। मैंने आपसे कहा था कि 1 मिनट कड़वा है, अब मीठा कसीदा शुरू होने वाला है। पहले मुझे ये बताइए कि सारे भाई तैयार हैं कसीदे के लिए? अब मैं तीनों हदीसों को कंक्लूड करके जुमला पहला कहने लगा हूँ। पढ़ूंगा उतना जितना मुझे कहेंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, सवा डेढ़, जितना कहेंगे। मैं चूंकि नौकर हूँ आपका, मैं हाजिर हूँ। जितना आप चाहेंगे आपका पुत्र उतनी नौकरी करेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपकी पाकीज़ा आवाज़ मिंबर तक आनी चाहिए। इसका मतलब है अब्बे ने कहा मुस्तहब जमात वाजिब, अब्बे की मुखालफत की 14 ने तोहफा छीन लिया, अब्बे की मुखालफत की करबला जाना भी फजूल हो गया। मासूम फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं मैं तुझे मत्थे लगाना पसंद नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं ऐसी मिसाल दूं जो मेरे 2 करीब हस्तियां बैठी हैं ना, इन्हीं की मिसाल देता हूँ आपको समझ आए। शुरू अपने से करता हूँ और अंजाम इन पे कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ 3 हदीसों का, रिवायतों का लुब्बे लुबाब खुलासा ये निकला, बंदा मौलवी हो, बंदा सैयद हो, बंदा थानेदार हो, बंदा वकील हो, बंदा जज हो, बंदा कितना बड़ा हो, नौकर है अपने अब्बे का। भाईजान एक मिनट जरा 1 मिनट मुझे दीजिए। पुत्र जल्दी बैठ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, पीछे वाला नजर नहीं आ रहा, नीचे बैठ जाओ। मैं एक जुमला फिर दोहराता हूँ जी। अगर किसी मेरे भाई को शक हो तो वो इशारा करके मुझे बताया कि पुत्र अगली गल कर, सानू समझ नहीं आई। तो मैं जनाब आपकी बात सुनने को तैयार है। दरअसल बताइए, मैं फिर कहता हूँ, बंदा 2 टके का मौलवी हो, बंदा हस्बी नस्बी सैयद हो, बंदा थानेदार। भाजी कभी थोड़ा जहा पक्का मनु मिल जाए सौखा है पढ़ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं तो मेरे रल के देना बात थोड़ी रल के देना। अल्लाह आपको मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। हाँ जरा तबीयत इस तरह की है, अशरा मुहर्रम के बाद मुसलसल पढ़ रहे हैं तो ऐसे देखे ना, ऐसे निचड़े हुए हैं हम। नाराज नहीं हो गए इतनी बात? अच्छा अल्लाह को सलामत रखे। थोड़ा सा कभी कभी नौकर का नशा भी लेना चाहिए। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी इज्जत पे इजाफा फरमाए। अच्छा इसका मतलब ये हुआ मेरे भाइयों, मतलब क्या हुआ कि बंदा 2 टके का जाकिर हो, बंदा हस्बी नस्बी सैयद हो, बंदा थानेदार हो, बंदा SHO हो, बंदा वकील हो, बंदा जज हो, हर बंदा नौकर है अपने बाप का। अब आपके पुत्र ने जुमला कहना है और आपने भूल जाना है कि आप रजब की सरजमीन पे बैठे हैं या 13 रजब वाले अली के अर्श पे चले गए हैं। आप जाने शाह जाने तरा जाने। इसका मतलब है बंदा कितना शादी, बंदा कितना बड़ा भी हो, नौकर है अपने बाप का। कुरान में, हदीस में, 14 के फरमान में इंसान पे पुत्र छोटा सुनो, बेटे पे वाजिब है वो अपने अब्बे की नौकरी करे, अपने अब्बे की मुलाजमत करे, अपने अब्बे की खिदमत करे। हर बेटे पे वाजिब है नौकर बन के रहे अपने अब्बे का। यही वजह थी कि अल्लाह ने मोहम्मद भेजने से पहले उनके बाबा को अपने पास बुला लिया। हबीब मेरा हो, नौकरी अब्दुल्ला की करे, अल्लाह को बारे में नहीं है। और मैं सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे मौला ने हाथ इसलिए दिया है कि वो 14 की शान उठे, हाथ उठाइए, वो चला रहा बिस्मिल्लाह करें। मौला आपको सलामत रखे। एक मेरे में देखो, फिर आपको समझ ज्यादा आएगी। और भाई लोग हमें पुत्र सुनो, लोग हमें फोन करके पूछते हैं मौलवी साहब जी या अली मदद, मौला अली मदद, ये बताइए कि पूरी कायनात में सबसे अफजल हस्ती कौन सी है? हम कहते हैं हुसैन का नाम, पाक ज़हरा का बाबा सबसे अफजल है। अच्छा तो कितना ये बताइए कि वो दुनिया में यतीम क्यों आए? आज पता लग गया। अल्लाह ने इसलिए यतीम बना के भेजा कि अल्लाह कहता है कि मैंने मोहम्मद को बनाया ही सरदार है। और कानून
بیٹا ابے کی نوکری کرے تو اللہ نے کہا میں ایسا کرتا ہوں قانون نہیں بدلتا, ابا ہی اٹھا لیتا ہوں. سمجھ آ رہی بیٹا آپ کو؟ چھوٹے بچوں آپ کو سمجھ پتر یہ جتنے بڑے ہیں سب جانتے ہیں, ان کو ساری مجلسیں آتی ہیں. بیٹا میں پڑھتا ہوں چھوٹے بچوں کے لیے, بسم اللہ کرنا, اللہ آپ کی عزت رزق میں اضافہ فرمائے. میں نے آج ایسی مجلس پڑھنی ہے کہ اگلے سال 28 محرم تک آپ بھول جائیں میں سیدوں کا نوکر ہی کیوں. ذرا سر اٹھائیے, ایسی مجلس پڑھوں گا آج آپ کی دعاؤں کے صدقے میں. جو بھی کچھ ہے نا یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. آپ چپ ہو جائیں, ہم مٹی سے برتن, آپ دعا کریں ہم ہیرے سے افضل. یہ سارا آپ کی دعاؤں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سوچ رکھیے گا گفتگو ایسی جو آپ نے عام طور پہ ممبر سے نہیں سنی ہوگی, یہ میرا وعدہ ہے. سر اٹھائیے جملہ سنیے. چونکہ اللہ کہتا ہے میں نے محمد کو بنایا ہی سید ہے. کیا بنایا ہے؟ سید. غلط, سید نہیں, سید. کیا لفظ ہے نہ سارے بولو سید. تھوڑے پنڈ تھوڑے کول شہر بھی آ رہے وہ کہنے والا ہے سید. سید والا نہیں, یہ غلط ہے. سید زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. صحیح. اللہ کہتا ہے محمد ہے ہی سید, محمد کے پاؤں سید, محمد کے ہاتھ سید, محمد کا ناک سید. ایسا جو صاحب ذرا چیک کیجیے میں کہاں جانوں. شاہ جی دعا فرمائیے گا. محمد کا ماتھا سید, محمد کی آنکھیں سید, محمد کا سر سید, محمد کا چہرہ سید. سر سے لے کے پاؤں تک محمد کا ایک ایک عضو بدن سید ہے, جسے سید کی سمجھ نہیں آئی. بھائی میں لفظ بدل لیتا ہوں, میں ایسا کرتا ہوں. یعنی محمد کے پاؤں انبیاء کے پاؤں سے افضل, محمد کا ناک انبیاء کے ناک سے افضل, محمد کے ہاتھ نبیوں کے ناک سے افضل, محمد کا سر جنہیں اما شیعہ کی دوسری نہ کرے, محمد کا سر انبیاء کے سروں سے افضل, محمد کی جان نبیوں کی جان سے افضل. یا رسول اللہ آپ کی جان کون ہے؟ فرمایا چپ کر, کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے. صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اتنی بڑی شکریہ پیچھے بیٹھ گیا, آپ نے مجھے بتایا تھا کہ نہیں ہے اونچا نعرہ ہے. بسم اللہ کرنا, مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار جی بسم اللہ کرنا. بابا جی, بابا جی بہت شکریہ. میرے مطلب صاحب لفظ کیا ہے پورا؟ سید. اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہی سید ہے. میں نے محمد سب کے نام چاہتا نہیں مہربانی, میں نے محمد کو بنایا ہی. میں میری مشیت یہ گوارا نہیں کرتی. وہی دھیان رکھا جائے. میرا خیال ہے سر جی جو ہے وہ کسی مہمان کو ڈریس بتا رہے ہیں. کوئی بات نہیں, ہاں کوئی بات نہیں, ہمیں میرے پہ رکھیے. انہیں مجھے سننا بھی زیادہ ضروری ہے تو مفہوم بھی ضروری ہے. بسم اللہ کرنا, بسم اللہ کرنا. آ جائیں آ جائیں, بسم اللہ. سید آئیں گے تو برکت میں اضافہ ہو جائے گا. بسم اللہ. لو جی سرکار میرے پاس توجہ ہے جناب کی؟ بھاجی توجہ ہے. جتنا جی چاہے موبائل بناؤ, لیکن موبائل بنانے والا خود نہیں بولتا. یہ سنوکا ٹاپنگ ہے. اب میرے بھائی کیمرہ لگاؤ میرے کو دیکھیے. اس کا مطلب ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری کائنات بھائی جان محمد کی تعظیم کرے. حسین کے نامے کو کسی کی تعظیم نہ کرنی پڑے, اور جس کی تعظیم واجب تھی اللہ نے اٹھا لیا. تو یار بابا ہی اٹھا لیا نا. اور بھائی رسول پاک جو ابا تھے حضرت عبداللہ پاک علیہ السلام, سرکار کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے اٹھا لیا. لو جی میں نے کبھی نہیں کہا کہ کل تک بولتے رہو تو حق ادا نہیں ہوتا, سارا پنڈال اٹھ کے بولو تو حق میں نہیں کہا. جس کے دل میں لیا وہ بیٹھے بیٹھے بابا کہتے حق ادا ہو گیا. مہربانی کیجئے, فکرہ اتنا بڑا ہے, غلط ہو قتل معاف, صحیح ہو پھر تیری پاکیزہ آواز میں پتہ نہیں چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ. کیسے بابا جی وہ اللہ جسے یہ بارے میں نہیں تھا کہ محمد اپنے ابے کی تعظیم کرے, وہ کہہ رہا تھا میرے حبیب تجھ پہ کھڑا ہونا واجب ہے, حسین کی ماں آ رہی ہے. میں صدقے جانا. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جسے سمجھ آ گیا دونوں ہاتھ اٹھائے, اونچا نعرہ حیدری. میں بسم اللہ کر, میں بسم اللہ کر. مولا آپ کے صدقے جانا, اللہ آپ کی نگاہ سنائے. میرے حبیب کھڑا ہونا مستحب نہیں واجب ہے. صدقے جاؤ میرا پردہ رہا ہے حجاب اللہ, حجاب اللہ رہا. اچھا اچھا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ممبر پہ نا, میں ذرا سچی بات کرنے کا عادی ہوں. آپ کے ممبر پہ جو خطبہ حضرات ہیں نا وہ میری طرح زیادہ تر ان پڑھ ہیں, تھوڑا پڑھے ہوئے, بالکل معمولی صاحب. تو اس لیے وہ واضح حدیثیں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں ابھی آہستہ سے کامیاب ہو رہے ہیں. کیا آپ کا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو یہ پوری روایت سناؤں؟ پوری کیسے ہے شاہ جی؟ سید دادا روایت کیا ہے؟ چاچا جی روایت کیا ہے؟ جب بھی بطول آتی رسول کھڑے ہو جاتے, مولوی صاحب اگوں اپنی کالی کمری اتارتے, ٹھیک ہے مولوی صاحب ٹھیک, واجل صفی مجلس سے ہی اپنی جگہ پہ بٹھاتے. اگوں مولوی صاحب چپ, مولوی صاحب آگے بھی تو ہے وہ بھی بتائیے. رجب کا نوکر بتائیں آگے کیا ہے؟
दुआ सोनी आएगी, वादा हो गया, हुसैनी वादा हो गया, हैदरी वादा हो गया। आप ही रिवायत पूरी सुन, कलिमा तैयबा की कसम, पूरी रिवायत सईदों की ताबी की अजमत में बाबा जी ये बनती है, जब भी बतूल आते रसूल खड़े हो जाते, फाजरत फी मजलिस ही जगह साफ करके अपनी चादर बिछाते और अपनी जगह बिठा देते। अगला फिक्रा सुन, कुरान के 30 पारों की कसम, पूरी रिवायत यह है, जब तक बतूल बैठी रहती रसूल खड़े रहते। भागे हो सारे दिन के महीने जारी, भागे हो। दाद में कमी क्यों आई? जो कि आधा मजमा रो पड़ा है। जरा थोड़ा सा आंख में कटाव रखिए ताकि मैं जुमला कह सकूं। पाक हुसैन की पाक अम्मा की खुशनुदी के लिए, पाक हुसैन की पाक अम्मा के सरकार का नारा लगाइए, मिल के ऊंचा नारा, हैदरी। मेरे मोहतरम साहब, मेरी प्रॉब्लम ये है, अब मैंने महिल शुरू कर दी, 5 मिनट और पढ़ना, 10 मिनट और पढ़ना, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरी महिल शुरू हो गई, किसी का शुरू हो गया। मुझे ये बताइए, जब भी हमने शादी पाक सजदा की शान पढ़ने की कोशिश की, कोशिश है ना, हकीकत तो अलग आता है कि बीबी है क्या, तो साथ वाली मस्जिद से ऐलान होता है मरियम भी तो बतूल थी। खुदा के बंदों, कौन सा इनकार करता है? हम शिया, हम सैयद, हम जाकिर, हम मौलवी जनाब मरियम की जूती चूमना इबादत समझते हैं। बड़ी अजमत है यार, उनकी अपनी अजमत ऐसी कि उनके स्टेटस का शौहर नहीं था। अच्छा, शौहर से मुझे याद आया, क्या नाम है जनाब मरियम के शौहर का? परेशान हो गए? नहीं है जी। अच्छा, सारे भाई कह रहे हैं कि जब था ही नहीं तो नाम कैसे हो, ये कह रहे हैं ना? आपका जवाब सही है। क्या आपने कभी जाकिर से पूछा कि शौहर था क्यों नहीं? है चाचा जी नहीं पूछा कभी? आज मैं थोड़ा पुत्र दसे ढेर सारे जवाब हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि कुफ नहीं था। मैंने कराची से पूछा, मैंने अबू धाबी से पूछा, मैंने मदीना रसूल से पूछा, मैंने आज़ाद कश्मीर से पूछा, मैंने पेशावर शाह चंद चराग से लेके रावलपिंडी कराची तक शाह गुरसां तक सबसे पूछा। तकरीबन बाबा जी यही जवाब आता है। बाबा जी दुआ फरमाइएगा, यही जवाब है। ये हजरत मरियम का कुफ नहीं था भाई, याद रखिए। तोहफा है भाई, तोहफा। अली की नानान का सदका तोहफा देने लगा, सिर चुको। भाई सुनिए, ऊंची आवाज में बोल के बताइए कि हजरत मरियम मासूमा है या नहीं? तो मासूमा से शादी कौन करे जो मासूम हो? सैयद दादा, क्या अल्लाह के कारखाने में मासूमों की कमी है? उसकी एक फैक्ट्री है जाकिर साहब, जिसके बाहर लिखा है अन-नबूवा और अंदर 1.25 लाख मासूम। भाई यार, सारे नबी मासूम नहीं तो 1.25 लाख नहीं है? ए अल्लाह, तोहफा दे लगा और मैं देखूंगा कि इल्म को कितना पसंद करते हैं। ये नहीं आखना अब क्या कभी नहीं सुना, मेरा ठेका थोड़ी नहीं सुना, तो मेरी बात गलत हो कतल माफ। जब चोर की सलाह मेरी सच्ची बात हो, फिर मुझे वैसे दुआ चाहिए जैसे हलाली दुआ देते हैं। अल्लाह, किसी एक मासूम नबी को भेज, वो आके मरियम से शादी करे। सैयद दादा, कुत्ते काफिरों का मुंह बंद हो जाए जो कहते हैं जब शौहर नहीं था तो बच्चा कहां से आया, किसी एक मासूम को भेज। शादी अल्लाह के वादे और जाकर मुझ तो भाई हिज़यान न पाक, अगर मैं किसी मासूम की शादी मरियम से कर दूं तो वो कयामत के दिन कहेगा, शादी कौन सी बड़ी बात है, जो तेरी बीवी बतूल है, मेरी बीवी भी तो बतूल है ना, इसलिए हमने शादी की नहीं। ना शौहर हो ना अली की बराबरी हो। मैं सदके जावा, जिसे समझ आएगा वो दोनों हाथ उठाए, ऊंचा नारा हैदरी। मैं सदके जावा। मेरे मोहतरम सामी, चाचा जी मेहरबानी, चाचा जी राजी हो गए, चाचा जी बुजुर्ग ने दुआ की। चाचा जी सफेद दाढ़ी वो है जिसका हया अल्लाह भी करता है, और ये मेरे कुछ नसीबी है कि सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मेरे बिल्कुल कहीं बैठे हुए हैं। सैयद होता है बेशक 1 साल का भी हो, और सफेद दाढ़ी का बड़ा एहतराम है। लो जी, मेरा ये डबल मुकाम हो गया, सदात भी तशरीफ फरमा है, सफेद दाढ़ी वाले भी हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा जी चाहता है थोड़े टाइम में बड़ी बातें करूं। तैयार है सारे? जब भी हमने कहा तो पता क्या थे, हजरत मरियम भी तो बतूल थे। खुदा के बंदे, बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है, दोनों बतूल हैं, फर्क है। अल्लाह, लोग कहते हैं काले कपड़े वाले, इन्हें क्या पता कुरान क्या है? मालिक जरा कुरान से 2 आयतें दे हमें, ताकि हर हलाली समझे कि जनाब मरियम कैसी मासूमा है और जनाब ज़हरा कैसी मासूमा है। पढ़ कुरान सूरह आल इमरान। मालिक पहले किसकी? मैं मरियम की। अच्छा मालिक पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इतना खींच के पढ़ूंगा कि आपको अरबी वर्ड की समझ आए। खींच के पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सूरह आल इमरान, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु। ऐ मेरे हबीब, उस वक्त को याद कर जब मलाइका ने कहा व इज़ क़ालतिल मलाइकतु।
या मरियमो ए मरियम इन्नल्लाह अस्तफाके वत्तहरके वस्तफाके अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, अल्लाह ने तुझे ऐसे पाक रखा जैसे पाक रखने का कहा। किसने? वइज़ क़ालतिल मलाइकतु, फरिश्तों ने कहा कि मरियम पाक है। ए अल्लाह, आप जरा बता हुसैन की अम्मा क्या है? फरमाया वही आयत जो तेरे बच्चों को भी आती है, इन्नमा युरिदुल्लाह वलियुज़हिबा। ऐसे नहीं नखेड़ूंगा नखेड़ूंगा फिर आपको समझ आएगी। एक एक लफ्ज़ को, इन्नमा युरिदु अल्लाहु, इन्नमा युरिदु अल्लाहु, इन्नमा युरिदु अल्लाहु। अल्लाह का इरादा है वो बतूल को ऐसे पाक रखे जैसे पाक रखने का हक है। मालिक आयतें दोनों, एक का इनकार करने वाला शिया हो वो काफिर, सुन्नी हो वो काफिर, बताना क्या चाह रहा है? एक का ऐलान फरिश्तों ने किया, एक का तो खुद कर रहा है, हमें क्या बता रहा है? तब कायनात को समझा रहा हूँ, मरियम ऐसी ताहिरा है जिसका ऐलान फरिश्तों ने किया, बतूल ऐसी ताहिरा है जिसका ऐलान मैं अल्लाह ने करके कायनात को बता दिया। एक जैसी ना कहना, जितना खालिक और मखलूक में फर्क है उतना ही मरियम और बतूल में फर्क है। मैं सदके जावा भाई, कुरान पे बोलने वाले जिए, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। फेफड़े की आखिरी तरह से हाथ डाली बोले ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, मौला आपको ए सर मुझे ये बताइए कि क्या मुझसे पहले भी खतीब कोई बना है सुबह से? तो ही फिर सारे ध्यान ना सुनते हैं, फिर एक कमर रखा करो, एक ही मौलवी बनाया करो बस। मौला आपको सलामत रखे। मैंने कहा मैं इतना अच्छा पढ़ता नहीं, ये बड़ा अच्छा सुन क्यों रहे हैं? मैं आया जो कला वहाँ तो कला घोड़ा तो पता फर्स्ट ही होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपकी इज्जत रिज़्क़ मिला फरमाए। जुमला सुनिए, दूसरा फर्क, ये फर्क सबको समझ आ गई भाई? याद हो गया आपको? क्या क्या कि जिसका ऐलान फरिश्ते करें वो मरियम, और जिसका ऐलान अल्लाह करे वो मजलिस वो होती है। तो यहाँ से याद होके जाए। अगला फर्क, पहले माफी मांग रहा हूँ ऐ सारे पंडाल से, कादी माफी सबके लिए जुमला नहीं है। ये जुमला उसके लिए है जिसकी अम्मा शिया है। नया शिया ना बोले माफी। सुन्नी भाई हमारी जान, हमारे मेहमान हो बराबर, सैयद हसबी नस्बी हो या वो शिया जिसकी अम्मा शिया है, ये ना बोले फिर दुख है। ऐ देखो बाकी को माफी है। अखर जुमला। दूसरा फर्क ये है जाकिर साहब, मरियम फकत बतूल है, ज़हरा ऐसी बतूल है वो जिसे कह दे वो भी बतूल हो जाती है। जाने कौन क्या समझा। बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको सलामत रखे। चले मैं आपको करीब करता हूँ, आखिरी 5 साल में पढ़ता हूँ, आपको करीब करता हूँ, फिर आपको सलाम करता हूँ। मिलके बताइए हर हलाली, मिलके बताइए वो कौन सी पाक बीबी है जिसने अपनी जूती तख्त पे रखी थी? अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या कमाल लोग बैठे हो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत फिजा सलामुल्लाह अलैहा नौकरानी है वो सईदों की, हमारी मुर्शदादी है, इसलिए मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के नाम ले रहा हूँ। अच्छा, तख्त पे क्या रखा था? हैं? जब मैं इतना था छोटे ऐसे, तो मैं खिताब सुनता था। एक किबला सैयद रियाद हुसैन शाह साहब रिजवी किला मियां सिंह वाले हमारे गुजरा वाले की शान थे। किबला काबा हजरत अल्लामा अली नसर हुसैनी तलहाड़ा। तो मैं जब बच्चा था बिल्कुल आज से यानी 25-30 साल पहले जब वो नए शुरू थे तो मैं उनको सुनता था। बेटा मुझे भी शौक हुआ, आज अल्लाह ने मेरी सुन ली, बेटा आप भी सुनिए। बचपन से लेके हम ये सुनते हैं। जूती रखी थी लाके सर ऐसे भाजी क्यों? मुझे हुकूमत की निशानी थी। अरे अल्लाह के बंदो, हुकूमत की निशानी थी तो बीबी अपना तकिया रख देती। भाई जो बीबी दुपट्टा इस्तेमाल करती थी, पुराना दुपट्टा उतार दी, वो तख्त पर रखती बाबा जी नेड़े। जूती क्यों? जूती क्यों? मुझे जनाब फिजा की जूती की कसम, मैंने मिंबर छोड़ के उस हलाली के मोटे हिला के कहना इस्मा इफहम या फलान अपना फलान, जो हम कवर में तलकीन पढ़ते हैं, मैंने वो तलकीन पढ़नी शुरू करनी है कि कदा शिया यार, तेरी माँ भी शिया थी और तू जुमला खा गया। बीबी जूती क्यों? ना तकिया रखा ना दुपट्टा रखा, जूती क्यों? तो मैं जूती रख के मुल्ला के मुंह पे जूता मार रही हूँ जो कल को कहेगा अगर तख्त अली का हक था, अली ने तलवार चला के छीना क्यों नहीं? जिस तख्त की फिजा को परवाह नहीं, अली तो अली है। सदके जावा जिसे मौला अली ने हाथ इसलिए दिया है वो हाथ बुलंद करे, वो चला रहा है तेरी जवानी सलामत। बिस्मिल्लाह करा मौला आपको सलामत रखे। क्या कमाल का मजमा है ये, रजब नहीं भाई, ये तो खुदा गदीर लग रहा है। मौला आपको सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा भाई आपको पता है ना सोशल मीडिया पे आजकल तो जंग छिड़ी हुई है।
ہے نا. یہ اذان دہشت گردی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی ہم تیری مجبوریاں سمجھتے ہیں. تو خدا کا مطلب ادھر دیکھیے, دعوت کم آئے توجہ, دعوت بے شک کم آئے. ادھر دیکھیے 3 گواہیاں کیسے ہیں. سورہ مائدہ 5واں سورہ, آیت کا نشان 55. 5 5 5 3 مرتبہ 5. سورہ مائدہ کا نمبر 5 ہے اور اس آیت ولایت کا نمبر 55 ہے. تو کتنی باری 5 ہو گیا؟ 3 باری ہے. 5 تو باری کی نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ ولی, رسول ولی, رکوع میں انگوٹھی دینے والا ولی. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ, اللہ ولی, محمد رسول اللہ, رسول ولی, اور علی ولی اللہ, رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی ولی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطیعوا اللہ لا الہ الا اللہ واطیعوا الرسول محمد رسول اللہ اولی الامر منکم علی ولی اللہ. اللہ ایک دیکھا نہیں, اللہ نہیں کہتا جلی نبی علی. پھر سنو میں منو جانچ نہیں ہوتی بھی آخر دی, کیونکہ رٹ کے نہیں بول رہا. دعوت تھوڑی دیا جی. مولوی صاحب جلی نبی علی, اور بے وقوف ہمیں کیوں کہتا ہے کہ تیسری گواہی ختم کرو؟ تیرے پاس کوئی ایسا ہے تو لا جو اس ترتیب میں پورا ہو سکے. صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ کرو. تیرے پاس کوئی ایسا ہے تو لا. ہمیں کیوں کہتا ہے کہ اذان سے علی ولی اللہ کو کاٹو؟ تیرے پاس کوئی ایسی ہستی ہے کہ تو کہہ خدا کی قسم کسی شیخ کو اعتراض نہیں ہے. صدقے جاواں مولا آپ بھی راضی ہو بھائی. پنجتن پاک کی قسم پورے پاکستان میں کسی شیعہ کو کوئی اعتراض نہیں. ایسے جو صاحب آپ کی وجہ میں کہہ رہا ہوں, کسی شیعہ کو کوئی اعتراض نہیں کہ جب آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, اذان میں کہتے ہیں نا, اس کے بعد آپ تیسرے نمبر پہ نام لیں, کسی کا بھی نام لیں, خدا کی قسم ہمیں اعتراض نہیں ہے. ہاں اتنا بس ہم عرض کریں گے کہ جس کا آپ نام لے رہے ہیں ہمیں اس کا بچپن بھی بتائیے. ہائے ہائے صدقے جاواں, ہمیں اس کی جوانی بھی دکھائیے, ہمیں اس کا بڑھاپا بھی دکھائیے. چونکہ محمد رسول اللہ کے بعد اگر مائک پہ کسی کا نام لینا ہو تو وہ اتنا پاک تو ہو کہ ولادت کعبہ میں ہو. صدقے جاواں, اتنا پاک تو ہو کہ بچپن ولادت ہو تو کعبہ میں, شادی ہو تو زہرا سے, اور شہادت ہو تو مسجد سے. اس علی کا مقابلہ ذاکر بھائی وہ کیسے کرے جسے سگا بیٹا کہے مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی نہ پیا. علی حق. میں بسم اللہ کر. میرے بھائی تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گیا تو مجھ سے بہتر پڑھنے والی ہستیاں موجود ہیں. اور پڑھیے, دعا کرو گے. سر اٹھائیے, جملہ سنیے, مطلب آپ کو سمجھ گئے. بی بی چوٹی کیوں؟ اچھا کیا کیا یاد رہا واقعی برقع لیا. چچا جی 4 بیٹے, داؤد, موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ. ذاکر نے آپ کے سامنے جب جناب فریدہ کا مسائل پڑھتا ہے تو چاروں بیٹوں کا نام لیتے ہیں. بہترین ملک کے نامور شخصیت تشریف فرما ہے, ان سے پوچھ لیجیے. برقع لیا بابا جی, بی بی چلی. پتر میرے دیکھو بھائی, بیٹا میرے دیکھو, بسم اللہ کرا. جناب داؤد سامنے آتے ہیں, بیٹے اماں کہاں؟ اس فکرے پہ صرف 5 حلالی بول پڑے تو میں راضی ہوں. اماں برقع پا کے جتی رکھ کے چلی گئی تھے. میں کہا بیٹا میں ہوں مریضہ عشق. صدقے جاواں پاجی میرے بول کر کے چوپتر نہ رکھا. بسم اللہ کرا. چھوٹے بھائی میں ہوں مریضہ عشق اور اپنا علاج کروانے مدینے جا رہے ہیں. اس فکرے سے سارے بولا جی کر لے تھوڑے پتر کا. اماں تو کوئی عام بی بی تھوڑی ہے, ملکہ پتر, ملکہ یعنی وقت کی بادشاہ. اماں تو ملکہ ہے, اماں تو نام تو لے. جتنا شاہ جی جتنا بڑا ڈاکٹر ہوا اماں تیری خدمت میں آ جائے گا. جدی اماں شیعہ کو نہ کرے بھی کہتے چپ کر, جہاں میں جا رہی ہوں وہاں نبی چل کے آتے ہیں. میں تیری وفاؤں پہ صدقے ہے پاک بی فضا, تیری جوتی پہ ہماری بہنوں کی چادریں نثار ہوں, تیری وفا پہ قربان جائے. بسم اللہ کرا, بسم اللہ کرا. جہاں میں جا رہی ہوں وہاں انبیاء چل جاتے ہیں. جوتا رکھا,
ایک علت بیان کی ہے, ایک علت یعنی وجہ, ریزن, سبب, وجہ چکر کی ہے. دوسری وجہ بیان ہوگی اور تیسری تب پڑھوں گا اگر ایسی دعا آئی کہ میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے کہ حلالی واقعی ایسے بولے ہیں جیسے بولنے کا حق تھا. اگر دو چار بندے بھی چپ رہے, بابا جی بیٹھے میں آپ ہی نام کرنا, اب آپ کے سامنے لاکر سا پڑھیں گے تو اے حق یہ تو جانا ہی آئے گی. اس فکرے پہ اگر ذات میں کمی آئی تو میں تھوڑا پتر لاڈلا بنا, میں چلا جی. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. بی بی جوتی کیوں؟ کہا میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتی, الہام ہوا تھا, اللہ کی کال آئی تھی. فضا, جی مالک. فرمایا تو ہے بطول کی نوکرانی؟ جی مالک. فرمایا اپنی جوتی تخت پہ رکھ. مالک تیرا حکم میں نے رکھ دی. لیکن مالک لوگ کل کو پوچھیں گے کیوں کیوں کیوں, وجہ چکر سبب ریزن علت کیا تھا؟ فرمایا اس لیے, شاید دعا کر رہے تھے بابا جی, فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں اپنی جوتی تخت پہ رکھ. پتر تیرے چار ہیں لیکن تخت پہ جوتا رکھ کے کائنات کو بتا دے اللہ کی نگاہ میں پورے سنجبار میں کوئی مرد بھی فضا کی جوتی کے برابر نہیں تھا. میں بسم اللہ کرا, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی جنہیں سمجھ آئی ہے ہاتھ اٹھائے گی, وہ چلا رہا ہے داری. جی سید دادا, جی سید دادا, مولا آپ کا شاید سایہ سلامت رکھے, اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے. پورے سنجبار میں کوئی مرد بھی فضا کی جوتی کے برابر. یہ ہے سیدوں کی کنیز. بھائی جو میرے بھائی تھکے تو نہیں ابھی, دو چار منٹ کی گنجائش ہے ابھی. کدھر میں دینا پھر اچھا نام پہ صاحب آگے یہ مطلب ان کے پاس کرتے, کیونکہ ہم پرانے ذاکر بابا جی صاحب تو نا, تو کہتے ہیں جب ذاکر کہتا ہے جب دائیں بائیں نازل ممبر آ جائے سمجھو ملک الموت آ گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے تو فرشتہ ہے نہیں, اس لیے آ گئے ہیں. ایک زندگی باقی ملاقات باقی میرے دل کی ان چلیے جانے یہاں. ٹھیک ہے جی, ہاں ایک فکرہ سنیے اور بھائی آگے پھر وہ انشاءاللہ باقی بھائی کو ٹائم ہے. اچھا مولا آپ کو سلامت کیا. ویسے جو آپ آئندہ بھی یاد رکھیے اگر مجھے بلانے کی آپ غلطی کریں اگر کریں تو پھر سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اپنے ذہن میں رکھا کریں. ٹھیک ہے, ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ آپ چونکہ ایسا چوتھا میں بلایا ہے تو جب ہم آتے ہیں نا جدوں اسی ذاکر آنے ہیں تو ساڈا کام ہو جاتا ہے. میں تھوڑا سا بیٹھا صرف دو فکریں اور آپ کو سلام. پاک بی بی, بھائی گھڑی دیکھیے, میں نے 5-7 منٹ تک ممبر بھائی کو دے دینا ہے. سر بھائی بڑی جلدی سپیڈ کرتا ہوں. پاک بی بی تخت چھوڑا ملا کیا؟ بی بی لبیا کیا. اجنہ دی اماں شیعہ ضرور بولا جائے. یہ فرمایا یہ تھوڑی عزت ہے کہ قرآن لانے والا بھی میری اجازت کا محتاج ہو. سب کے جہاں اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. کیا کمال مجمع ہے بھائی, یہ رجب نہیں, یہ تو خم غدیر کا نشہ ہے. خدا کی قسم, مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا کہنے بھائی آپ کے شادی شادی نال ممبر صاحب ایسا جو صاحب یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ یہ اس رات کی طرف اشارہ تھا جب دو سیدوں نے کہا تھا اماں کپڑے کہاں ہیں؟ تو پاک بی بی نے کیا جواب دیا؟ تمہارے کپڑے. بھائی آپ مجھ سے چھوٹے ہیں, دکھنے میں چھوٹے لگ رہے ہیں مجھ سے. اگر میں آپ کا لفظ صحیح کرواؤں تو مجھے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ خدا کی عظمت کی قسم, ذاکر کے ذکر کی قسم, بی بی پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. پوائنٹر کی قسم میں یہ نہیں کہا. پتہ کیا کہا تھا؟ بی بی نے کہا تھا تمہارے کپڑے تمہارے درزی کے پاس ہیں. درزی کے پاس نہیں بلکہ تھانے دار صاحب لگے ہیں ننکانہ صاحب, اور آپ کو پتہ ہے جہاں پہ لگے ہو بندہ وہیں پہ رہتا ہے نا, تو ان کے کپڑے کہاں ہوں گے؟ ننکانے کے درزی کے پاس. بابا جی آپ کا پینٹ کون سا ہے؟ شادی وہاں کیا, ان کے کپڑے وہاں کے درزی کے پاس. میں تو پتر 2 ٹکے کا نوکر, میں گجرانوالہ سے ہوں, تو میرے کپڑے کہاں ہوں گے؟ گجرانوالہ کے درزی کے پاس. میں سارے بولنا جی, اس کا مطلب ہے جو بندہ جہاں کا ہوتا ہے درزی بھی سر کے جمع تیری جوانی سنا وہی کا ہوتا ہے. 10 تک وہی. میں کیا کڑی دیکھو 5-7 منٹ بعد میں اتر جانا ہے. 10 تک وہی. جب پھر پوچھا کون کون؟ میں بھی درزی ہوں. تو سب کچھ سین نہیں رکھا. یہ وہ جبریل ہے جو انبیاء کی مدد کرتا ہے. یار ذاکرہ کو سنتے نہیں کہ جب یعقوب کے بیٹوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تو اللہ نے کہا 4تھی ایر تک نہ جائے. تو کون آیا سی؟ تو جب حضرت ابراہیم کلا بازیاں کھاتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے تھے تو کس نے کہا تھا حل کہا جا, ہیلپ کی لوڑ ہے, کس نے کہا تھا؟ اس کا مطلب ہے جبریل وہ ہے جو انبیاء کی مدد کرتا ہے. انبیاء کی مدد کرتا ہے اسی لیے تو علی کا شاگرد ہے. اور کتنے بیٹھے ہو ادھر چلنے بندے ہو جانور پھٹ کے جاوا وہ چلا رہا ہے وہ جو نبیوں کو بچاتا ہے نا. فضا نے پوچھا کون؟ تبھی میں درزی. کسی بھائی کے پاس خالی کاغذ ہے, صاحب چھوٹا سا کاغذ اتنا ٹکڑا ہو جائے
छोटा टुकड़ा हो जाए, किसी भाई के पास खाली इतना सा कागज हो जाए, मेरे तो करीब बैठे हुए हैं तो खाली कागज आपको मैं दिखाऊंगा और इंशाल्लाह सारे दिन के थकन दुश्मन अली के जाकर साहब घर पहुंच जाएगी। मौला आपको सामने देखे पर कोई चीज नहीं, खाली ऐसा कागज हो जिसके ऊपर बस ये काफी है भाई, काफी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ए देखो जी, नहीं बाबा जी मिल गया, बाबा जी मिल गया, ये देखो ये खाली है। तो भाई ऐसा के साथ बैठे हुए हैं, खाली कागज वरना मेंबर पे फेंके तो पर्चा नहीं होता। चाचा जी पर्चा नहीं होता। जाकिर साहब तो आप हमारे बाबा जी आपके नौकर ने, जाकिर साहब इधर देखिए, आपके नौकर ने कागज को फाड़ना है। अगर दुश्मन अली के कलेजे टेलीविजन पे बैठे ना फटे, मैं शहीदों का नौकर क्यों हूं? सिर चुको। कौन? ये भी दर्जी। मैं फिजा पूछती हूँ कौन? यदि अम्मा शिया चुको ध्यान दी। कहा दर्जी। मैं आखिरी बार पूछ रही कौन? आप बीबी लाख बार पूछिए। दर्जी हूँ, दर्जी हूँ, दर्जी हूँ। अरे तो कहते मैं जबरील हूँ, कुरान लाने वाला हूँ, चूल्हा चुराने वाला हूँ, नबियों को बचाने वाला हूँ, इतने सारे तेरे लकब। दर्जी हूँ, दर्जी हूँ, दर्जी हूँ, दर्जी हूँ, दर्जी हूँ, दर्जी हूँ। मजा क्या है? मुझे ज़हरा ने दर्जी कहा है और जो ज़हरा की बात रद्द करे वो कल भी लानतुल्लाह था, वो आज भी लानतुल्लाह। सदके जावा, सदके जावा, अंदर वाले, बाहर वाले, गली वाले, अली वाले, तेरी जवानी सलामत। बिस्मिल्लाह करा, तेरी जवानी सलामत। मौला आपको इसने और चाचा की मेहरबानी। साउंड वाले भाई क्या बात है भाई आपकी भी, आपका साउंड बड़ा बेहतरीन है जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बिस्मिल्लाह करा। क्योंकि मैंने वादा किया ना 5-7 मिनट, 2-3 हो के 2-3 आगे आपको सलाम करके जा रहा हूँ। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। अच्छा जी बिस्मिल्लाह करा। अच्छा तो दर्जी भाई जल्द करेंगे, याद है दर्जी भाई क्या लाया है? कभी भी कपड़े हैं जिन्होंं मेरा मौजू याद है वो बोले ए यूं दरवाजा खोला कपड़े पकड़े। अगर तो किमें 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 कपड़े पड़े, इधर देखो ए यूं, यानी बीबी जाकिर साहब, बीबी ने कायनात को बता दिया जिसकी नौकरानी का फरिश्ते से पर्दा हो उसे बतूल कहते हैं। मैं सदके जावा, थोड़ी मार से तो सदके जावा। मेरा जी चाहता है मैं आपके पाँव चूम के अगला जुमला कहूँ। खुदा की कसम क्या कमाल लोग हैं यार, आप क्या कमाल लोग हैं। दर्जी भाई कपड़े लिए कहाँ से आया है? मैं 5 तक की कसम अगला फिक्र जी पढ़ना जो दाद सोनी ना आई थे। कहाँ से आया भाई? अब सुनो जी, बिल क्या कहते हैं? बीबी कपड़े पकड़े शहीदों को दें, आज ईद है, सबद हसर का सुर्ख हुसैन का। मेरे को देखो बीबी ये ना पूछे मैं कहाँ से, देख दिल करता थोड़ी जुबान चा खा, ये ना पूछो मैं कित्थों आया। ये बड़ियां उच्चियां गल्लां ने भाई, जिंदी अम्मा शिया कंजूसी ना करे भाई, जिंदी माँ शिया कंजूसी ना करे। जब लमका के भाई, जब लमका के लंबा कर ये बड़ी ऊंची बातें हैं। जनाब फिजा को जलाल आया और यूं बीबी देखा क्या बार बार कह रहा है ऊंची बातें। अरे तू क्या जाने पलंदी किसे कहते हैं? जहां मेरे पीरों की जुत्ती शुरू हो वहां तो तेरे पर जलते हैं। हाय हाय सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे। जिन्होंने समझ आई है क्यों नहीं बोलिया? शाह जी बाबा जी जिन्होंने समझ आई क्यों नहीं बोलिया? जहां मेरे पीर की जूती शुरू हो वहां तेरे। अब कहा था कि नहीं लो दनो तो आर्मल का अल्लाह तरक तो अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है। अगर मैं एक पोरा भी आगे बढ़ा आखिरी फिक्र आप सलाम उच्ची बोल के दसो वो कौन सा सिहाबी है जिसे तेरे मौला अली ने कहा कि तू ईमान के 10वें दर्जे पे है? जी सलमान आपका जवाब सही। वो कौन सा सिहाबी है जिसे भरे मजमे में रसूल ने कहा था अंत मिन्ना अहलुल बैत? वो भी ऐसा, इसका मतलब आपका मतलब दोनों तरह मुसलमान। आपका जवाब सही। ऐसा जो साहब इसका मतलब है 2 फूल जनाब सलमान के कंधे पे जाकिर साहब ऐसे हैं जो किसी और सिहाबी को नसीब नहीं। इधर देखो 10वां दर्जा मिन्ना अहलुल बैत। आखिरी फिक्रा ते कल्याण नहीं छड़ना बोलो, सोहनी दुआ देनी जिवें सुनदे हो। जनाब सलमान आए कौन? कहा मैं सलमान हूँ। जी भाई सलमान कैसे आना हुआ? कहा बहन मैं ना अभी मस्जिद नबी में बैठ के तस्वीर पढ़ रहा था और सोच रहा था कि 2 फूल मेरे पास हैं, बाकी मदीने में किसी और मर्द के पास नहीं है। कोई ऐसा बंदा है जरा मेरी टक्कर ना है? तो कोई भी नहीं था। अचानक मेरे ध्यान में आया कि नहीं जनाब फिजा, तो जरा बहन फिजा से जाकर पूछूं कि बहन मैं अफजल हूँ कि आप? जनाब फिजा अंदर कहती हैं भाई देखिए ना मैं भी विलायत वाली, आप भी विलायत वाले, और भाई विलायत अली से बड़ा रुतबा क्या होगा? भाई छोड़िए ना भाई, भाई रहने
दीजिए ना, दोनों बहन भाई मिला मेरा भाई रहने दीजिए। नहीं मेरी बहन वो ना जरा मैं थोड़ा सा ये चाह रहा था कि जरा चलो मेरा मतलब है दो दो हाथ हो जाए, पता तो चले अफजल कौन है हम में से। मैं कुर्सी छड़ के मोटा हला रखना है, तू कादा सियाँ चुप कर गया। जब फिर कहती है भाई सलमान मैं जरूर पूछ रहा है अफजल कौन है। कहा भाई देखिए ना जहाँ खड़े हैं ना यहाँ भी मैं अफजल हूँ। कहा कैसे? कहा भाई देखिए ना आप जन्नत के बाहर खड़े हैं, मैं जन्नत के अंदर खड़े हूँ। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे महिला सुनी है सैयदना मेहरबानी बाबा जी, ये है ही आपके थापड़े का सदका बाबा जी। बाबा जी आपके थापड़े का सदका, सदात की दुआओं का सदका जी। उच्चा नारा हैदरी। कहा आप जन्नत के बाहर मैं जन्नत के अंदर हूँ, भाई सलमान राजी हो? कहा बहन आपने दलील ऐसी दी कि मेरी जुबान बंद हो गई, अब वो तो बोलने की ताकत नहीं रही। बहन आपके क्या कहने, बस भाई करूँ? कहा बहन एक और बहन एक और। कहा भाई और पढ़ूँ? हाँ। कहा बहन मैं कहती छोड़ो नहीं भाई बस एक मेरी बहन मेरी बहन है एक। मैं मान गया कि आप अफसर हैं, लेकिन चलो जाते जाते फजाइल तो एक और सुना दो। अच्छा भाई ये बताइए रजब वालों, भाई ये बताइए कि पूरी कायनात किनके सदके में बनी? जनाब सलमान कहता है मैं MA का तालिब इल्म और सवाल कच्ची पक्की वाला अलफनार बेबकरी वाला। वो मेरी बहन ये तो बच्चे भी जानते हैं कि पूरी कायनात बनी है 5 के सदके में। अंबिया हो, औलिया हो, किताबें हो, मलाइका हो, अर्श हो, फर्श हो, जन्नत हो, जहन्नम हो, कायनात की हर चीज ग्लोबल विलेज पूरा वर्ल्ड एनीथिंग हर चीज सदका है 5 का। ये कैसा सवाल है? ये कैसा सवाल है? बहन फिजा हर चीज 5 के सदके में है। जिदी अम्मा शी है उसकी आवाज मिंबर तक तैयार होनी चाहिए ना। जनाब फिजा कहते हैं भाई एक किनके सदके में कायनात बनी? फरमाया सारे बोले थे, फरमाया 5 के। कहा भाई फिर भाई सुन ले इस 5 की तादाद में भी मैं अफजल हूँ। कहा बहन वो कैसे? कहा भाई जिनके सदके में कायनात बनी है ना उनमें से तूने 4 को देखा है, मैंने पूरे 5 को देखा है। हाय हाय मैं सदके जावा मौला आपके हाथों को बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। आपने 4 को देखा है मेरी जवानी भाई सलामत, और मैंने पूरे। बस भाई सलमान अपने अंदर जाऊं? कहा बहन खुदा की कसम अब नहीं कहता, बस एक। इसको बाद नाव ना को जाकर ना मुझे मैं सुना बस एक सदके जावा शादी मेहरबानी बस एक। कहा अच्छा भाई फिर सुन मैं जो फिजा हूं ना, हाँ मैं आपसे पहले जन्नत में जाऊंगा। बस मैं इसके बाद नहीं पढ़ना, मौला की कसम आखिरी लफ्ज़ है सदके जावा आप जिए हैं मुझसे बहन फिजा यानी कि ऐसे भी तू ही वक्त है चौथे भी तू ही। और बहन किस जन्नत की बात कर रही हो? जिसके मालिक हसन हुसैन है। कहा भाई मैं हसन हुसैन से भी पहले जाऊंगी। वो मेरी बहन तो जन्नत के मालिक है। फरमाया भाई तूने हदीस आदि पढ़ी? हदीस इतनी नहीं है इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, नहीं ये आदि है। पूरी क्या है? इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह व अबूहुमा अफजल मिनहुमा। हसन हुसैन जन्नत के मालिक हैं और इनका बाबा अली इन दोनों से अफजल है। अली अफजल है। कहाँ? कहा भाई मैं अली से भी पहले जाऊंगी। वो मेरी बहन क्या हो गया? मैं क्यों कुछ बेटा कर रहा? और मेरी बहन उस अली की बात कर रही है जिसके बारे में 100 लाख के मजमे में रसूल ने कहा था मन कुन तो मौला हो फाज आदि मौला। कहा भाई ये बताइए एक गदीर में एक अली का हाथ बुलंद किसने किया था? कहा मेरे नबी ने। कहा भाई मैं नबी से भी पहले जाऊंगा। और मेरी बहन क्या हो गया? मुझे तो दिन को बैठे बैठे तारे नजर आ रहे हैं, ये क्या बोले जा रही है? जनाबे सईदा की नौकरानी है तो इतने बड़े मान इतने बड़े लाड। कहा भाई आपने क्या कहा मैं किसकी कनीज हूँ? कहा बतूल की। कहा भाई मैं बतूल से भी पहले जाऊंगा। और भाई आप सुन रहे हैं हाँफता कांपता हुआ सलमान मशहद नबी में आया जिस भाई का ये अकीदा है कि आदम की खिलकत से पहले से लेके बाद क़यामत तक होने को होने से 14 पहले जानते हैं, वो बोले बाकी को छुट्टी। दौड़ता हुआ जनाब सलमान आया, रसूल ने यूँ देखा और मुस्कुरा के कहते हैं सलमान लगता है तुझे मेरी फिजा ने हैरान किया। हाय हाय सच के नाम लगता है तुझे मेरी फिजा ने करा हैरान किया। जी बादशाह जी गल्लां बड़ियां बड़ियां करती है भी। क्या हुआ? कहा बादशाह जी पहले कहती है कि मैं सलमान से पहले जन्नत में जाऊंगी। तो मैं कहता हूँ मेरी खैर है। फिर क्या पता सुन लो बेटा आपको समझा रही है। फिर कहती है मैं हसनैन से पहले जाऊंगी। तो मैंने कहा चले हसनैन को किसे माँ कहते हैं? तो लाड से कह रही है कोई बात। बादशाह जी फिर कहती है मैं अली से पहले। मौला अली को बैठे थे बाबा जी मैं मारी गया थोड़ा भी ना लिया। अगला जुमला बड़ा पानी पीना बादशाह जी
आपका भी नाम है? कहती है मैं रसूल से पहले। बादशाह जी होर ऐसे तो मैं मुक गया। कहती है मैं बतूल से भी पहले। रसूल कहता देख सलमान, ऐ शान आ शान ही सरकार कहता देख सलमान, ये जो मेरी फिजा है ना, ये है शहीदों का करम देख, ये जो हाय हाय हाय, ये जो मेरी बेटी फिजा है ना, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती, ये है शगीरदा हुसैन की माँ। जब तक इसके पास पहाड़ से बड़ी दलील ना हो ये बोलती नहीं है। चलो दोनों जाकर पूछते हैं। रसालत माप जन्नत के अंदर आ गए, सलमान जन्नत के बाहर खड़ा है, हाथ रखा, ध्यान रखा भाई, सिर चुको, सोनी दाद दे लीजिए, आखिरी फिक्र है, इस तो बात नहीं पढ़ना, हाथ रखा। मेरा बेटा फिजा जी या रसूलल्लाह, खैर है, एक मिनट मुझे सुने, छोड़े हुआ जी या रसूलल्लाह, एक मेरा पुत्र एक बाहर सलमान बड़ा हैरान परेशान है, पुत्र तूने कहा है कि मैं 5 दिन से पहले जन्नत में जाऊंगी? जी बादशाह जी आखे मेरा पुत्र वो बड़ा परेशान है, 2 उसके पास फूल है, मिन्ना अब्दुल वैद भी है और 10वां दर्जा भी है, लेकिन मेरा पुत्र वो इंतजामिया बच्चे हैं, मेरे को देखिए बेटा वो तो कांप रहा है। मेरे लड़के मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, वो तो हाँ पर है, कहाँ पर है, उस पर कब की तारी है, पुत्र दस रहा हूँ तो काम था पे बेटा तूने कैसे कह दिया कि मैं 5 दिन से पहले जाऊंगी? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिछले जुमे को आप अपने सहाब को जब नमाज़े जुमा का खुतबा दे रहे थे, हाँ जी, तो आपने कहा था ना कि हर नबी जन्नत में जाने का इंतजार करेगा कि जब तक मैं मोहम्मद जन्नत में ना जाऊं कोई नबी जन्नत में नहीं जा सकता। हाँ बेटा मैंने कहा था, और सरकार फिर आपने कहा था कि मैं मोहम्मद उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मेरी ज़हरा जन्नत में ना जाए। हाँ बेटा मैंने ये भी कहा था, और फिर आपने कहा था अल्लाह नूरी नाका को नाजिल करेगा जिसे न किसी जिन ने देखा है न किसी बशर ने देखा है, वो नूरी नाका पे ज़हरा सवार होगी जिसका कजावा ज़बरदस्त का होगा और जिसकी मुहार याकूत और मरजान की होगी, उसके ऊपर ज़हरा सवार होगी। या रसूलल्लाह जिस नाके पे बतूल सवार होगी महार तो मेरे हाथ में होगी ना, सवारी बाद में जाती है, महार पहले जाती है। वो जब बोल के हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत तो मैं बुलंद करके आखिर में अपनी तक ऊंचा नारे भाई पाक बीबी को नमस्ते रखें। मैं एक शिकरा सिर्फ नमाज की दूसरी रकत का और फिर मैं अपने भाई को मिंबर दूँ। बेहतरीन फ़ज़ाइल और मसाइल पढ़ने वाले मेरे भाई मौजूद हैं। बेशक इसे थोड़ा साइड में अभी एक बिल्कुल आपकी दुआ से 1 मिनट कह के मैं फिर जाता हूँ। इज्जत कितनी कि बतूल से पहले जन्नत में जा रही है, मुसीबत कितनी। मैं जाकिर साहब की मौजूदगी में माइक पे मुंह रख के कैमरे के सामने कह रहा हूँ, अगर मैं ये जुमला साबित ना कर सकूँ मेरा कत्ल माफ। तो शिया माँ का पुत्र होके हाय ना करे फिर तो शिया कैसा है? मारा सैयद ज़ादियों को भी गया है, मारा फिजा को भी गया है। जेडे अगे बैठे हो उच्ची हाय करा दे, तो फिर वास्ता है सने जाकिर साहब समेत उच्ची हाय करा दे। पाइतन पाक की कसम सैयद ज़ादियों के मार खाने में और फिजा के मार खाने में फर्क ये है, सैयद ज़ादियों को इतना मारा गया कि गोशवारे उतर गए, फिजा को इतना मारा गया कि कान ही उतर गए। बिस्मिल्लाह करा, जिस सैयदादी को भी मार सकते जामा जी, बिस्मिल्लाह शादी, बिस्मिल्लाह करा, मौला तेरी हाय कबूल फरमाए। जिस सैयदादी को भी मारा जाता था ना भाई, ये आगे बढ़ के कहते थे मुझे मारो। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैंने इसी दिन के लिए तो मोहम्मद से ज़िंदगी मांगी थी। मैं अभी उठाऊँ तो मेरे भाई जाकिर साहब कह रहे थे कि किबला इतों ही एक अर्सा है माशाअल्लाह फिक्र आखो तो इतों ही आखो, तो मैं अपने भाई का हुक्म पूरा करूँ। मौला के जो मद्दा खान होते हैं मैं उनका नौकर हूँ, मेरे भाई ने हुक्म दिया अर्सा माशा का एक फिक्रा सुनिए और मैं आपको सलाम कर दूँ बेटा। इसे मसाइल के बाद बेटा 2 मिनट के बाद जो मेरे भाई ये किले लगा रहे हैं, भाइयों से गुजारिश है 1 मिनट के बाद सिर्फ, इसके बाद फिर जाकिर साहब जब खड़े होंगे ना तो ऐलान होगा तो उस वक्त ये काम कर लीजिएगा बेटा। आखिरी फिक्रा है मसाइब का, जैसे भी आपने फजाइल सुना मेरा कोई गिला नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मसाइब है और मेहरबानी कीजिएगा इस फिक्रे पे हाई कीजिएगा। पहले तो मेरे नौजवान भाइयों की तादाद ज़्यादा है, आप तो लोग फैक्ट्री में कारखाने में कहते हैं ना कि तुम्हें कहना चाहिए वाह हुसैन वाह हुसैन, हुसैन ने वो काम किया जो नबी नहीं कर सके, और तुम इतने शिया पागल हो तुम कहते हो हाय हुसैन, तुम वाह हुसैन कहना चाहिए। रोंदे क्यों हो? आ मेरा भाई जो मेरे शिया भाइयों को तंग करता है, आ तुझे मैं बताऊँ, मैं तेन दसना असि रोंदे क्यों आ। काट लिया गला शिमर ने जौरो जफा से, रोते क्यों हैं? अरे फिर खंजर को पूछ लिया ज़ैनब की रिदा से।
मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, इसलिए रोते हैं भाई। सदके जाना मौला तेरे हाय कबूल फरमाए। सदके शादी आप तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, खुदा की कसम मुझे लगा था थके हुए हैं, क्योंकि सुबह के मेले जारी है, एक से बढ़कर एक जाकिर साहब ने मिंबर पे जी। मैं फिर कहता हूँ काट लिया गला शिमर ने जोरो जफा से, और फिर खंजर को पूंछ लिया ज़ैनब की रिदा से। दो फिक्रे जो मेरे भाई ने मुझे कहा है, मैं इसके अलावा बिल्कुल कतल नहीं पढ़ूंगा। अरसा माशर होगा। आप मुझे ये बताइए कि टेलीविजन पे आपने कभी अजान सुनी भाइयों की? और अजान के बाद एक दुआ होती है, उसमें एक लफ्ज़ आता है मकाम महमूदा। सारे दसो सुने नहीं कभी? मकाम महमूद वो तख्त है जहाँ पे खड़े होके तेरे मेरे नबी मेरी शिफात हमारी शिफात करेंगे। वहाँ खड़े होके ना अर्श के पाए में हाथ डाल के बतूल का बाबा सारे हाय करेंगे, उच्चा होकर कहेगा मेरे अल्लाह मुझसे बड़ा मजलूम कौन है? मैं जिस शहर में बादशाह था वहीं मेरी ज़हरा लावारिस थी। चाचा जी बिस्मिल्लाह करना। चाचा जी तियाले बंदे एक बार हाय तो करना जी। जी बिस्मिल्लाह करना। जिस शहर में जी बिस्मिल्लाह चाचा जी मैं सुल्तान था वहीं मेरी ज़हरा शाह जी लावारिस थी। बाबा जी ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं कि आप इशारा समझते हैं। मेरा दिल करता है मैं अगला फिक्रा मौला अली का आधा पढ़ूं, आधा आपकी हाय पूरा करेगी। हाय वास्ते तैयार? रसूल ने कहा मैं जिस शहर में सुल्तान था वहीं मेरी ज़हरा लावारिस थी। अगो मौला अली की आखना है, अद्धा फिक्रा पढ़ना है, अद्धा सुहाय करके पूरा करना है। अली आगे बढ़ेंगे, उसी जगह हाथ डाल देंगे मेरे अल्लाह कोई शक नहीं तेरा हबीब बड़ा मजलूम है, लेकिन मेरे अल्लाह तेरे नबी की बेटी है तो उसी के शहर में। मेरे अल्लाह मैं वो मजलूम हूँ जिसकी कोई बेटी शाम खा गया, जिसकी कोई बेटी बाजार खा गया, जिसकी कोई मिसर सो गई। मेरे अल्लाह मेरी एक बेटी भी मेरे वतन पे सारे रो पे आओ जी आखिरी फिक्रा रोजे माशा करो आपको सलाम करूं। दो बाबा जी ऐसा जो साहब दो जाकिर साहब दो शहीदों ने बात की कैमरे वाले भाई। तीसरा सैयद बढ़ के ऐसा जुमला कहेगा पाक मोहम्मद चीखे मार के रोएंगे और तेरा मौला अली जदुल्लाही हाथों से वजहुल्लाह पे मातम करेगा। और वो अल्लाह का अर्श जो साकिन था अब हुसैन की बात में जल्जले में आएगा तो सारे तियाने एक बार हाय करेंगे। रसूल ने कहा मैं वो सुल्तान हूँ जिसकी बेटी लावारिस थी। अली कहते हैं मेरी एक बेटी मेरे वतन पे नहीं। हुसैन आगे बढ़ेगा रो के कहेगा मेरे अल्लाह कोई शक नहीं मेरा नाना भी बड़ा मजलूम है, मेरा बाबा भी बड़ा, मुझे समझ आए मेरा बाबा भी बड़ा मजलूम है, लेकिन मेरे अल्लाह मेरा नाना हो या बाबा इनकी बेटियां कब्र में तो आजाद हैं। मेरे अल्लाह अल्लती तो फनत में कयूद मैं वो मजलूम हौसला बिस्मिल्लाह करा मैं वो मजलूम जी बिस्मिल्लाह करा मैं वो मजलूम सैयद हूँ जिसकी बेटी कब्र में भी रस्सियों समेत आ गई। तेरे पांचवें बिस्मिल्लाह करा तेरे पांचवें भाई तेरे पांचवें तेरे मौला मातम को कबूल फरमाए। तेरे पांचवें मौला से पूछा गया मौला क्या ये बात सच है कि आपकी फूफी सकीना शाह जी कड़ियों समेत दफन है? इमाम लोग कहता सच है। कहा मौला ये भी सच है कि आपकी फूफी को आपके भाई सज्जाद ने अपने हाथों से दफनाया था? फरमाया ये भी सच है। कहा मौला फिर कड़ियां उतारी क्यों नहीं? क्या यजीद की तरफ से हुक्म था कि कड़ियों समेत दफनाया जाए? इमाम फरमाते हैं ऐसा कोई हुक्म नहीं था। मुंह पे मातम कर कहता मौला मैं उम्मती हूँ, मसला सईदों की गैरत का है। जब यजीद की तरफ से मना नहीं था सज्जाद ने कड़ियां उतारी क्यों नहीं? दियाले माफ करा दे। इमाम लोग कहते हैं वजह ये थी भूख और प्यास बर्दाश्त कर करके लोहे की कड़ियां मेरी फूफी के गोश्त में पेवस्त हो गई थी। मेरे बाबा ने उतारने की कोशिश की थी, मेरी फूफी का गोश्त भी कट कट के जमीन पे गिरता था। 2016 अंचोली इमामबाड़ का कराची का एक बुजुर्ग सैयद है, जैसे आप बैठे हैं, एक बुजुर्ग सैयद उठ के कहता है अल्लामा साहब ये बताइए सबसे ज्यादा और दियाने हो सबसे ज्यादा हुसैन की छोटी बच्ची प्यासी क्यों रही? अल्लामा तारफ जोरी आल्लाह दर्जात ही ने काटम किया और रो के कहता है वजह ये थी पानी वो बांटता था जिसने दौर छीने थे। जैसे वो पानी लेके आता बीबी फूफी की ओट में चली जाती। कहीं ऐसा ना हो कि मैं हौसला 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 मौला तेरा पुरसा गुल घुमाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी मांगू और ये जालिम मेरे मुंह पे तमाचे मारे। सबसे ज्यादा प्यासी मेरे इस भाई से लेकर सकलैन गल्लू तक आप किसी भी जाकिर से कहो जाकिर साहब हमें सकीना का कत्ल सुना। ये जाकिर एंड यहाँ करते हैं बाबे की गर्दन थी सकीना का सीना था और यहाँ रख के कहती है बाबा पहले मैं तेरे सीने पे सोती थी आज तू मेरे सीने पे सो जा। हुसैन के आबरू कटे हुए होंठ फटे हुए दांत टूटे हुए रुखसारों पे तमाचों के दाग दाएं की जुल्फे बाएं और बाएं की जुल्फे दाएं और ये जाकिर छुपा के तेरे डर से कहते हैं हालत ऐसी थी बाबे की कि सकीना वहीं मर गई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली जन वलीउल्लाह की कसम ये जाकिर तेरे डर से ये पढ़ते हैं। अंदर से इन्हें अच्छी तरह पता है और यार जो बच्ची शाह जी 13 ज़रबे देख के न मरी वो खाली गर्दन देख के कैसे मरी?
रबाब की बेटी को भाईजान खुदा की कसम है बिस्मिल्लाह करा भाईजान, हाय की आवाज तो आनी देना, हर बंदे का हक बनता है। मारा बड़ा गया था कुरान की कसम, पता है कितना मारा गया? एक मिसाल देके आपको सलाम करता हूँ। ज़जर बिन कैस पे अल्लाह लानत करे, शिमर के बाद सबसे ज्यादा तमाचे सकीना को इसने मारे। मीर जी बिस्मिल्लाह, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ना भाईजान, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मैं खमसा पढ़ रहा था, मेरे साथ थे एक किबला अली रज़ा खोकर साहब मसाइब का पहाड़, जाकिर साहब मैंने फिक्रा कहा पांचतन दी कसम में उठ के अली रज़ा ने जो पाकिस्तान का नंबर 1 मसाइब खान है मुंह पे मातम किया और मेरे माथे का पसीना अपनी जुबान पे मला। कहते हैं अल्लाह मेरे मसाइब में और ये उनकी अकीदत है और तस्वीर अता फरमाए। वो फिक्रा मैंने ये कहा था जाकिर साहब, मैंने कहा कि अल्लाह ज़जर बिन कैस पे लानत करे। इधर से एक मोमिन उठा, जैसे वो भाई उठे थे ना पहले, मोमिन उठ के मुझे कहता है लामा साहब इस कुत्ते के बच्चे ने किया क्या था? शाह जी मैंने जुमला कहा, 2 मिनट मजमा रोता रहा, जाकिर साहब मैं चुप रहा। मैंने कहा ये वो हरामजादा है जो करबला से लेकर शाम तक ऊंट के बहाने अकबर की मां को मारता था। और जिसका अकबर जैसा बेटा मारा जाए क्या उस मां को तालियां जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा। अब मौला तेरी हाय और तू के कबूल फरमाए। मैंने फिक्रा आखिरी कहना है और मैं ये फिक्रा अगर जिंदगी रही तो मैं फिर पूरी चढ़ाते हौसला हौसला फिर जी बिस्मिल्लाह करा। मैंने कहा ये वो हरामजादा है जो ऊंट के बहाने अकबर की मां लैला को मारता था। चाचा जी जिसका अकबर जैसा बेटा मारा जाए क्या उस मां को लोहे के तादियाने मारने की क्या जरूरत रहती है? अल्लाह तेरा पुरसा फरमाए। मेरे भाई ने उठ के मातम किया, मुझे आपके पाक मातम की कसम मेरा आपसे वादा हो गया, आइंदा जब कभी आपके इलाके में आऊंगा अव्वल से आखिर तक मुकम्मल पाक बीबी सकीना की कत्ल और शहादत पढ़ूंगा। आज एक ही फिक्रा सुनो ते मेहरबानी ऐ झोली तुहाडे पुत्र दी खाली है हाय से सोहनी हाय निमरता कलो तो मैं सलाम करा। मेरे मुल्क की नामवर मसाइब खान शख्सियत है सैयद मुर्तज़ा आशिक, आपने नाम सुना होगा चाचा जी। मैं लाहौर बाटापुर में बैठा था, भाईजान 20 रमज़ान था, कुरान दी कसम शाह जी सैयद ने जुमला कहा जाकिर साहब मैं 3 दिन तक जब याद आता रोता था। वो कहता है ये तुमने सुना है ना कि बंदे हाथों पे बहन का लाशा उठा के पूछता था गरीबों वाला कब्रिस्तान कौन सा? के अलम की कसम, कुरान के 30 पारों की कसम, उस सैयद का लफ्ज है। वो कहता है सकीना का लाशा उठा के सज्जाद बाजार में जा रहा था, एक हरामी कमीनी शामी औरत की निगाह पड़ी, इसने बड़ा सा पत्थर हाथ में लिया और कह दिया उस दिन मैं पत्थर नहीं मार सकी, आज मैं इसे पत्थर मार के बदला लूंगी। इसने पूरी कुव्वत से वो पत्थर मारा जो सैयदा सकीना के लाशे में लगा। सज्जाद की आवाज आई और ना मारो मेरी बहन मर चुकी है। बस याद